ख़वातीन हज़रात, मैं आप तमाम लोगों से मुल्तमिस हूँ कि रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम मुकम्मल कर दिया गया है। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने पासेस और टोकन्स में अपने हाथ में रखिएगा, ठीक है। और बराए मेहरबानी किसी भी बदतज़मी का मुज़ाहरा मत कीजिएगा, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सीट पे बैठे रहिएगा, कोई उठने की किसी को ज़रूरत नहीं है। बराए मेहरबानी। Now it's time for the next speech maker. The student who is dynamic and multi-talented student. So in a huge clapping welcome. Sayyid Aftab. In the name of Allah, the Omnipotent, the Omnipresent, the Watchful and Merciful, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वामी मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वामी मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में क़ौमे रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मल्को नसब पर इन्हिसार, उनकी जमीयत का है मल्को नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। Respectable teachers, honorable guests, my efficient classmates, and the shining star of TLZ, Assalamu alaikum. Today's topic which I have to explain is the creation of Pakistan. Respectable teachers, I will try my best to explain the condition existing in British India just before independence and why it was essential for the Muslim to have a separate homeland, why the Pakistan was created, and now what is the responsibilities of us in this respect to defend the solidarity and sovereignty of this Pakistan. Honorable guests, in United India, the Hindus had a ruling majority of 3-1. The Muslim felt convinced from their long experience and past history that in United India freedom from the British rule would only mean the change of masters. The Muslim already had known the selfish and cruel attitude of the Hindus. Efficient fellows, the Muslim felt that their culture would suffer a great setback and their economic condition would grow even worse. That's why the Muslim demand a separate country for themselves. Dear listeners, the demand of new homeland for the Muslim was not made due to mere religious differences. In fact, there were much vested differences as well as making it possible for the two people to live together. The Muslim believed in equality of all and the right of private property, while the Hindus believed in a caste system. Dear audience, the creation of Pakistan under the leadership of Quaid-e-Azam was to provide the opportunities to the Muslim to have a real freedom and to develop their own culture. Dear teachers, the creation of Pakistan was to embody certain ideals, among them the supreme one were the installation of Islamic ideology and Islamic law. The question arises, have we achieved the goals of forefathers who want a free and a free Pakistan? Have we gotten the economical free Pakistan? All the answers I think will be in no. Respectable teachers, the creation of Pakistan under the leadership of Quaid-e-Azam was to provide the opportunity for the Muslim to have a real freedom, the opportunity for the Muslim to have an Islamic Sharia and to provide the opportunities of health, education and residence to the citizens of Pakistan, of our motherland. Pakistan, the gift of Allah. Pakistan, the prison of our father, innocent martyrs and great men. I pray to Almighty Allah, the most bounteous, for the everlasting stay of Pakistan on the globe of world. Ameen. I want to finish my speech on the couplet. A poet says, हम तो मिट जाएंगे अहले वतन लेकिन तुमको, हम तो मिट जाएंगे अहले वतन लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहार होने तक. Outstanding speech. Let's see which factor is going to be highlighted by the next doer. The student who is enthusiastic, passionate as well as challenging. In your huge clapping, welcome Miss Shazia.
आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लब्बे कुशाई करने की जिसारत कर रही हूँ वो है पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी, असबाब महरकात और इसका इलाज। दूर तक अंधेरे हैं, यास के बसेरे हैं, घात में लुटेरे हैं, गासिबों के डेरे हैं। कैसी रात छा गई सुबह आफरीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। ला इला के देश में किश्वरे हसीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान कलमा ला इला की बुनियाद पर कायम किया गया और इस वादे पर हमने अपने रब से ये मुल्क मांगा था कि हम यहाँ कुरान का कानून नाफिज करेंगे। मगर अफसोस सद अफसोस निफ सदी से ज़ायद अरसा गुजर गया मगर हम आज तक हकीकी पाकिस्तान ना बना सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हालिया दिनों में दहशतगर्दी की लहर हो, आए दिन धमाके हों, टारगेट किलिंग या खुदकश हमले किसी खतरनाक सूरत हाल का पता देते हैं। मगर कभी हमने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है वो लोग जो अहले वतन की जिंदगी को अजीरत बनाना चाहते हैं? क्यों किश्वर हसीन को उजाड़ना चाह रहे हैं? किसके कहने पर मरकज़ यकीन पर बेयकीनी फैलाई जा रही है? साम्राज्यों के रंग पूरा मुल्क खून रंग, अकल रह गई है दंग, हुक्मरानों की उमंग। जानो दिल निसार है आज एक लाइन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। हकीकत यह है कि अगर हमारा हुक्मरान तबका अहले इल्म व दानिश्वर और सियासतदान संजीदा हो तो इन नासूरों का मुकाबला किया जा सकता है। हकीकत यह है कि अवाम व खास सब अपने फर्ज से गाफिल हो चुके हैं, अपनी अपनी दफली अपना अपना रात की मस्ताक सब अपने वतन से गफलत बरतने लगे हैं। ऐसे में दुश्मनाने वतन हमारे वतन को वीरान न करे तो क्या करे। अजीज साथियों, हालिया दहशतगर्दी का अगर जायजा लिया जाए हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है तो मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह तो वही होगी जिसके मुतल्लिक सादिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा दुश्मनाने इस्लाम तुम पर इस तरह टूट पड़ेगा जैसा भूखा दस्तरखान पर। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? फरमाया नहीं, तुम तादाद में तो ज्यादा होगे मगर तुम्हें वहन की बीमारी लग जाएगी। फरमाया ये वहन क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दुनिया की मोहब्बत और आखिरत का खौफ। इसी तरह एक सबब यह भी है हम आपस में बट गए हैं। जिन कौमों की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होता वो कौमें दुश्मन के लिए करनेवाला बन जाती हैं। हमारी सूरत हाल तो ऐसी है जैसे इल्लामा इक़बाल ने कहा था, कहीं फिरका बंदी है तो कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे माशरे में दंगे फसाद की सबसे बड़ी वजह फिरका वारियत है। आप माशरे में कहीं भी नजर दौड़ाएं, मसलन होटल हो, मस्जिद हो या दीनी मदारिस हो, हर जगह फिरका वारियत के हवाले से तरबियत दी जाती है और लोगों को इस बात पर उकसाया जाता है। आप खुद बताइए, हमारा मजहब हमें इस चीज़ की तालीम देता है। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी अपनी है। अगर हम सब मिलकर इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो मुल्क से बेहयाई खत्म कर सकते हैं, मुल्क से ये जंग खत्म कर सकते हैं और फिर से यकजा होकर दुश्मनाने इस्लाम को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आइए, अगर हम इस मुल्क को फिर से अमन का गहवारा और जन्नत नज़ीर बनाना चाहते हैं तो अहद करें, अपने मुल्क में इस्लाम नाफिज करेंगे, अपने मुल्क से बुराइयों को ख़त्म करेंगे ताकि ये मुल्क हकीकी इस्लामी फलाही मुमलिकत बन जाए। आखिर में तकरीर का इख्तिताम इस शेर के से करना चाहती हूँ, किसी की कमतरी को इज्जतो वकार का नशा, किसी को मालो जर किसी को इक्तिदार का नशा। नशे में धुत तमाम है, नशे तो सब हराम है, ये सब नशे उतार दो मेरा वतन सवार दो। Great speech. In last, I want to appreciate the contest as a whole. All the enthusiastic students tried their level best and presented very actively and confidently. Ladies and gentlemen, once again clapping for all of them. It's time to know who is that lucky winner and let's see who will carry the day. For this purpose, I would like to call the judge of this speech contest. But Bilal, do you know who is Sir Rehan? Yeah, I know. ऐसी शख्सियत जिन्होंने TLZ की बुनियाद रखने में एक अहम किरदार अदा किया, वो नाम जिन्होंने कभी अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ऐसे उस्ताद जिन्होंने ना सिर्फ तलबा व तलबात को इंग्लिश सिखाई बल्कि अपने टीचिंग स्टाइल के ज़रिए उनके आइडियल पर्सनैलिटी भी बन गए। So please put your hands together for सर रेहान।
आप तमाम हज़रात के सामने हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने स्पीच कॉन्टेस्ट प्रेजेंट किया और इस स्पीच कॉन्टेस्ट को हम वाइंड अप करते हैं। इस तरह के हमेशा की तरह स्टूडेंट्स की पोजीशंस वगैरह दी जाती हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल अ पर्सनैलिटी ओवर हियर, हिज नेम इज़ मिस्टर तौसीफ।